Dear friends, we have so far discussed about how to find the Laplace transform of f of t. But in this lecture, we will going to discuss how to find inverse Laplace transform. In the application point of view, this will be not be very useful unless we find the inverse Laplace transform of the given function f of t in time domain of the function f of s in frequency domain. Let's see the definition of inverse Laplace transform. The definition of inverse Laplace transform, we know the definition of Laplace transform. If Laplace transform of f of t is equal to f of s, then this f of t is the inverse Laplace transform of the function f of s, and this will be denoted as inverse Laplace transform of capital F of s is equal to f of t. Repeat again. If Laplace transform of f of t equal to capital F of s, then inverse Laplace transform of f of t equal to small f of t. Linearity property of inverse Laplace transform. Consider let C1 and C2 be any two constants, and Laplace inverse of capital F of s equal to small f of t, and Laplace inverse of capital G of s equal to small g of t. If these two are inverse Laplace transform, then Laplace inverse of C1 capital F of s plus C2 g of s is equal to, now we see linearity property. What is mean by linearity property? Here is a प्लस साइन, तो इस प्लस साइन से हम क्या कर सकते हैं, दोनों का लैप्लास इनवर्स सेपरेट कर सकते हैं. तो लैप्लास इनवर्स सेपरेट करते हैं, लैप्लास इनवर्स वी सेपरेट दिस लैप्लास इनवर्स फ्रॉम दिस प्लस साइन. तो लैप्लास इनवर्स ऑफ C1 f of s, लैप्लास इनवर्स ऑफ C1 f of s प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ C2 g of s, C2 g of s. Okay, this C1 and C2 are the constants, so we can take outside the Laplace inverse Laplace transform. Then C1 Laplace inverse of capital F of s plus C2 Laplace inverse Laplace transform के बाहर C2 Laplace inverse of g of s. ओके, तो हमने क्या किया, बाहर लिया, और यह Laplace inverse of f of s क्या है, f of t. ओके, तो this is a linearity property of inverse Laplace transform. There are three methods to find inverse Laplace transform. There are three methods to find inverse Laplace transform. Methods to find inverse Laplace transform. Methods to find inverse Laplace transform. First method is use of table of elementary inverse Laplace transform
second method is second use of theorems or properties of inverse Laplace transform, and third one is use of partial fraction. So in this video we will see first method to find inverse Laplace transform, that is use of table of elementary Laplace transform. So these three are the methods to find the inverse Laplace transform. So first method is use of table of elementary inverse Laplace transforms. Inverse Laplace transform. Okay, we know first Laplace transform of 1 is 1 upon s. This is the Laplace transform of 1 is equal to 1 upon s. Then what is the inverse Laplace transform of this function 1 upon s is? This will be Laplace inverse of 1 upon s is equal to 1. If Laplace transform of 1 is equal to 1 upon s, then inverse Laplace transform of 1 upon s is equal to 1. Similarly, Laplace transform of e raised to at is equal to 1 upon s minus a. Then inverse Laplace transform of the function 1 upon s minus a, inverse Laplace transform of this function 1 upon s minus a is e raised to at is equal to e raised to at. Similarly, we know Laplace transform of e raised to minus at is equal to 1 upon s plus a is equal to 1 upon s plus a. Then inverse Laplace transform of s 1 upon s plus a is equal to e raised to minus at. Also we know the formula of Laplace transform of sin at is equal to a upon s square plus a square. Then inverse Laplace transform of a upon s square plus a square equal to sin at. अगर हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है तो हमें उसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म से क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा. ओके, तो हम ये कंपेयर करके ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख रहे हैं. जैसे कि यहाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 इक्वल टू 1 अपॉन s, देन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s इज इक्वल टू 1. ओके, सिमिलरली फॉर दी स्टैंडर्ड फंक्शंस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to at, लैप्लास ट्रांसफॉर्म e raised to minus at, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at. तो देखो तो यहाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, sin at. लेकिन हमें मालूम है a क्या है, कांस्टेंट. तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर हम a ले सकते हैं. सपोज a हमने क्या लिया, बाहर लिया, तो ये या इधर आएगा. तो a इस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को मल्टीप्लाई है, तो a क्या हो जाएगा, उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा. तो a क्या होगा, यहाँ डिवाइड होगा. तो हमें मिला ये फॉर्मूला, इनवर्स
लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन ए टी अपॉन ए. ओके, नेक्स्ट we know Laplace transform of cos at, Laplace transform of cos at is equal to s upon s square plus a square. तो ये फॉर्मूला है Laplace transform of cos at के लिए, s upon a square plus a square. Then Laplace inverse of s upon s square plus a square is equal to, then inverse Laplace transform of this function is equal to cos at, is equal to cos at. तो आप बोलेंगे सर ये अपने यहाँ ये जो a था ये आपने लैप्लास के बाहर लिया, या यहाँ जो ये था वो लैप्लास इनवर्स के बाहर लिया, बाद में इस साइड को डिवाइड किया, तो यहाँ यस क्यों नहीं कर सकते? यस नहीं कर सकते, लैप्लास के बाहर नहीं ले सकते या फिर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यस क्या है? फंक्शन ऑफ एस है. क्या है? फंक्शन ऑफ एस. यहाँ ए क्या था? ए क्या था? कांस्टेंट था, इसलिए हमने लैप्लास इनवर्स के बाहर लिया. तो यहाँ एज इट इज फॉर्मूला आएगा, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at इक्वल टू s अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन s अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू cos at. ओके, नेक्स्ट Laplace transform of, we know Laplace transform of hyperbolic functions, that is sin h a t equal to a upon s square minus a square. Then inverse Laplace transform of this function, then inverse Laplace transform of this function a upon s square minus a square is equal to क्या आएगा? हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन ए टी, दैट इज साइन एच ए टी आएगा. ओके, सिमिलरली यह क्या है? ए कांस्टेंट है. ए कांस्टेंट मैं बाहर ले सकता हूँ, लैप्लास इनवर्स के मैं बाहर ले सकता हूँ, तो ये यहाँ आएगा, लेकिन ए मैं यहाँ इस साइड पे डिवाइड कर सकता हूँ, तो क्या आएगा? अपॉन ए आएगा, साइन एच ए टी अपॉन ए. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला जी, we know Laplace transform of cos h a t, that is Laplace transform of hyperbolic function of cos h t equal to s upon s square minus a square. Then Laplace inverse of this function, Laplace inverse of this function s upon s स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा? हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ cos a t, दैट इज cos h a t आएगा, cos h a t. यहाँ यस फंक्शन ऑफ एस, इसलिए लैप्लास इनवर्स लैप्लास या लैप्लास के बाहर हम नहीं ले सकते. ओके, तो ये हो गया. अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी स्टैंडर्ड फंक्शन का अगर हमें मालूम है तो हम उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं. वी नो द फॉर्मूला H, Laplace transform of t raised to n equal to gamma n plus 1 upon s raised to n plus 1. Then Laplace inverse of this function gamma n plus 1 upon s raised to n plus 1 is equal to t raised to n. If Laplace transform of t raised to n equal to gamma n plus 1 upon s raised to n plus 1, then Laplace inverse Laplace transform of this function is equal to t raised to n, equal to t raised to n. लेकिन यह हमें देखना है, तो ये गामा n प्लस 1 क्या है? कांस्टेंट ही रहेगा. ये रैशनल हो, इरेशनल नंबर हो, या सिर्फ कांस्टेंट इंटीजर हो, तो यह क्या रहेगा? ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट क्या लैप्लास इनवर्स के बाहर आएगा. लैप्लास इनवर्स के बाहर आने के बाद हम क्या कर सकते हैं? यहाँ डिवाइड कर सकते हैं. तो यह ऊपर है,
यहाँ जाके गामा n प्लस वन क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है। यह गामा n प्लस वन था, वो मैंने इस साइड पे क्या किया, डिवाइड किया। तो ये फॉर्मूला हमें मिला है, क्या है, लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/n s रेज़ टू n प्लस वन इक्वल टू t रेज़ टू n अपॉन गामा n प्लस वन। तो गामा n प्लस वन की वैल्यू क्या रहती है, तो आपको ये केयरफुली देखना है। गामा n प्लस वन का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है गामा n प्लस वन के लिए, तो गामा n प्लस वन इक्वल टू n गामा n, ये फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब ये रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, n इज रैशनल नंबर, n इज रैशनल। और उसका दो फॉर्मूले हैं, गामा n प्लस वन इक्वल टू n गामा n फॉर n इज रैशनल नंबर, एंड गामा n प्लस वन इक्वल टू n फैक्टोरियल इफ दिस n इज पॉजिटिव इंटीजर, that is 1 2 3 4 5, okay, if n is an integer। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ये फार्मूला यूज करने वाले इंटीजर के लिए और ये रैशनल नंबर के लिए, दोनों में डिफरेंस है। तो इसमें भी मैं आपको एक बताना चाहता हूं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म t रेज़ टू n, लैप्लास ट्रांसफॉर्म t रेज़ टू n किसी t रेज़ क्यूब, t रेज़ टू 4, t रेज़ टू 5 के लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन इनवर्स के लिए डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करना जरूरी नहीं है, आप इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं, इस फार्मूला में थोड़ा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म t का पावर अगर ऐसा आता है क्वेश्चन कुछ t क्यूब, तो t रेज़ टू 3, t रेज़ टू 4 n में आएगा, तो आप यहाँ ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या आएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ, फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s क्यूब s रेज़ टू 4 s रेज़ टू 5, तब आपको यहाँ एक सिंगल नंबर होगा। तो सिंगल नंबर होगा तब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला आपको ज्यादा सिंपल रहेगा, मैं आपको यहाँ बताता हूं। तो कभी भी लैप्लास इनवर्स ऑफ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए लैप्लास इनवर्स ये फार्मूला आपको यूज करना है। 1/s रेज़ टू n के फॉर्म में आपका एग्जांपल होगा, s रेज़ टू n प्लस वन के फॉर्म में नहीं होगा। तो ये लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s रेज़ टू n प्लस वन हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल ऊपर s के ऊपर क्या होगा, एक सिंगल नंबर होगा, s का इंडेक्स एक सिंगल नंबर होगा। तब हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे n प्लस 1 है या n प्लस 2 है, ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यह ऊपर सिंगल नंबर होगा, तो s रेज़ टू n के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, और यही फॉर्मूला आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s क्यूब s रेज़ टू 5 s रेज़ टू 4 के लिए आपको यूज करना है, यही फार्मूला। ओके, तो यहाँ s रेज़ टू n प्लस वन है, n की जगह हम n माइनस वन पुट करते हैं, या n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, n माइनस वन। तो n की जगह n माइनस वन सभी फार्मूला में रिप्लेस होने के बाद क्या आएगा, तो यहाँ देखो, तो मैं यहाँ s रेज़ टू n की जगह n माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा s रेज़ टू n इक्वल टू t रेज़ टू n की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, we replace this n by n minus 1, तो n minus 1 रिप्लेस हो रहा है। नेक्स्ट अपॉन n की जगह n minus 1 रिप्लेस किया तो क्या आएगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा, n रहेगा। तो अपॉन गामा n, गामा n, तो गामा n है, तो इस गामा n के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, गामा n दो फॉर्मूला यूज करना है। दो फॉर्मूला कब, जब n रैशनल होगा और जब n इंटीजर होगा। अगर n रैशनल होगा तो कौन सा फॉर्मूला, n माइनस वन गामा n माइनस वन, ये फॉर्मूला। अगर ये n आपका इंटीजर नंबर है तो गामा n इक्वल टू क्या, n माइनस वन फैक्टोरियल। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s रेज़ टू 3 s रेज़ टू 4 s रेज़ टू 10, इस टाइप के एग्जांपल के आंसर फाइंड करने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करने पड़ेगा। और इस फार्मूले में क्या आएगा, आपका यहाँ गामा n आएगा, और गामा n आने के बाद आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, गामा n इक्वल टू n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन when n is rational number, and we have to use this formula gamma n equal to n minus 1 factorial when n is an integer। तो इस तरह से
हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो उसके एग्जांपल्स लेते हैं। Examples. Find inverse Laplace transform of the following functions. Of the following functions. Of the following functions. Formula. First formula, inverse Laplace transform of 1 upon s minus a equal to e raised to at. Second formula, Laplace inverse of 1 upon s plus a equal to e raised to minus at. Okay. So for our first example, find inverse Laplace transform of the following function. First example, example number 1, Laplace inverse of 1 upon s minus 5. So how to find this Laplace inverse of 1 upon s minus 5? Which formula we have to use here? This formula. Laplace inverse of 1 upon s minus a equal to क्या है, e raised to at. तो Laplace inverse of 1 upon s minus a, a की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो आंसर क्या आएगा, इक्वल टू e raised to a की वैल्यू क्या है, 5। तो आंसर क्या रहता है, e raised to at। तो यह क्या आएगा, e raised to 5t, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट, फाइंड द इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म of the function 4 upon suppose 2s minus 5, 2s minus 5, इसका आंसर आपको फाइंड करना है। फर्स्ट आपको पता है एक कांस्टेंट है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर हम ले सकते हैं। तो यहाँ 4 इनवर्स के बाहर रहेगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर रहेगा। फिर किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, 1 upon 2s minus 5, इसका आपको क्या लेना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो यह देखो कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है, यहाँ लैप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस ए या लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s प्लस ए। तो यह कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है, लैप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस ए का। लेकिन यहाँ s का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ s का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो s का कोएफिशिएंट 1 जब रहता है तब उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो यहाँ s का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ हमें 2 नहीं चाहिए, तो 2 या s का कोएफिशिएंट हम 1 बना सकते हैं। कैसे, 2 कॉमन लेके। तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे, फॉर एज इट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ ब्रैकेट में रहेगा s माइनस, या 2 कॉमन लिया इसलिए क्या होगा, 5/2 रहेगा। फिर से यहाँ 1/2 कांस्टेंट है, वो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर, 4/2 लैप्लास इनवर्स ऑफ क्या रहेगा, सिर्फ 1/2 कांस्टेंट इनवर्स के बाहर, 1 upon s माइनस 5/2। ओके, तो 4/2 क्या होगा, 4/2 क्या होगा, 2। एंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s माइनस a, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s माइनस a की वैल्यू क्या है, 5/2। तब आंसर क्या रहता है, उसका लैप्लास इनवर्स क्या रहता है, e raised to at। तो क्या होगा, e raised to at, इसका आंसर क्या रहता है, e raised to at। लेकिन a की वैल्यू क्या है, 5/2 at इंटू t। सिमिलरली अगर यहां प्लस साइन रहता, तो सपोज यहां प्लस साइन रहता, तो कौन सा फॉर्मूला, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s प्लस a, उसका आंसर क्या है, e raised to minus at। अगर यहाँ 1 upon s प्लस a है, 1 upon s प्लस a की वैल्यू कितनी, 5 हो, तो उसका आंसर e raised to minus at, माइनस साइन, ये क्या है, माइनस साइन।
तो यह आंसर क्या रहता है, e−5t। नेक्स्ट सपोज इसी एग्जांपल में यह कौन सा साइन रहता, प्लस, तो सेम प्रोसीजर, सिर्फ यह चेंज क्या है, प्लस साइन, यह चेंज क्या है, प्लस साइन, यह चेंज क्या है, प्लस साइन। सिर्फ लास्ट स्टेप आपको ऑब्जर्व करनी है, यहाँ 4/2 कांस्टेंट है बाहर, 2 उसका आंसर आता है 2, लेकिन लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s प्लस, लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s प्लस, ए की वैल्यू क्या है यहाँ 5/2, 5/2, तो 5/2 1/s प्लस ए, 1/s प्लस ए, तो a इक्वल टू 5/2, उसका आंसर क्या रहता है e−at, तो e- साइन a क्या है 5/2t, e−at, तो इसका आंसर हो गया।